A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of miscellaneous questions which are related to the different chapter of the accountancy. In the last video, we discussed the numerical question which are related to the not-for-profit organization and partnership form. So in this video, we also discuss a lots of practical problem which are also related to the not-for-profit organization as well as the accounting for company, that is issue of share. Okay, so first of all, we discuss the numerical problem which are related to the not-for-profit organization. Basically, this question is related to the preparation of opening balance sheet, income and expenditure account, and the closing balance sheet. Thereafter, we will move to the next question, the second question of this video, that is the accounting of share capital. In this question, we can see that firstly, company issue the share. There are various kind of the call scenario, and at last, company forfeited the share, and out of them, company reissued the share to the other person. Okay, so let us start the today's video. In this video, you know very well, two questions are discussed. First, which are related to the NPO, and second is the accounting for share capital. Okay. Information is the receipts and payment account Sri Mahavir Sports Club for the year ended 31st March 2014. यानी 31st March 2014 का बैलेंस इज गिवन, आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है, and the information are cash 800, bank 4200, fixed deposit at 9% 10,000, members subscription 96,000 लिखा है इंक्लूडिंग 800 फॉर 12 and 13, जिसमें से 800 रुपए 12-13 का है. 12-13 मतलब प्रीवियस ईयर का है. मेंबर एडमिशन फीस 3,500, सेल ऑफ फर्नीचर 1,600, सेल ऑफ ग्रास 200, डोनेशन 5,000, मैच फंड रिसीव 12,000, इंटरेस्ट ऑन फंड फिक्स डिपॉजिट 450, सैलरीज 17,000, अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन 3,400, मेडिसिन परचेस 4,000, मैच एक्सपेंस 8,800, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000, maintenance expense 3,600, rent and taxes 8,950, grass rate 500, cost of second hand car 40,000, balance cash closing cash 1,500, bank 6,000, fixed deposit at 9%, that is 10,000. Okay, and the additional information are as follows, that is a subscription receivable last year 1,000, current year 2,500, advance subscription beginning 600, closing 900, opening stock of medicine 480, closing stock of medicine 650. And the other information related to this question is the staff payable opening 1,200, closing 1,400, and the last information related to this question, that is a total furniture on 1st April 2013 was worth 20,000 and the book value of the furniture was sold for 5,000. यानी शुरू में आपके पास फर्नीचर था 20,000 रुपीस का. लिसन केयरफुली, शुरू में आपके पास फर्नीचर कितने का था? 20,000 रुपीस का था, जिसमें से 5,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने सोल्ड कर दिया और लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and a balance sheet as that date. आपको बैलेंस शीट बनानी है और इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि वी prepared only opening balance sheet and income and expenditure account of this question, and the closing balance sheet आपको खुद प्रिपेयर करनी है. Okay, so first of all we prepared the opening balance sheet of the given information. जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. सो हाउ वी विल प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट? यू नो वेरी वेल, क्योंकि वी रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ स्पेस ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी तो बनाना है हमको. सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, थोड़ा से स्पेस ले लेते हैं यहां पर एंड फिल, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट. एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर होगी? ऑन 31st मार्च 2013 को प्रिपेयर होगी. 31st मार्च 2013 को प्रिपेयर होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट और द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग.
फॉर्मेट इज लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे? यू नो वेरी वेल, वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. The first information, as you can see, that cash 800 and bank 4200, fixed deposit is 10,000. Okay, and subscription out additional information में देखिए आप लोग, subscription receivable, that is known as the outstanding subscription at beginning. So outstanding subscription is your assets 1000 and advance subscription is 600. Beginning subscription is that is 600, and stock of medicine, opening stock of medicine, so stock of medicine will be a 480. मेडिसिन का स्टॉक कितना है आपके पास? 480. स्टाफ सैलरी पेबल, दैट इज आपको स्टाफ को सैलरी देना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है बिगनिंग में? 1200, तो बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में जाएगी. एंड द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल, तो फर्नीचर कितना था शुरू में? दैट इज द ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस ऑफ द फर्नीचर इज 20,000. So you will put all the information related to the opening balances, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज विदाउट opening capital fund we cannot prepare the closing balance sheet. Okay, so let's we total it. So जब हमने बैलेंस शीट का एसेट साइड टोटल किया, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट का, so we find that the total of the asset side is 36,480 and liability side का जो टोटल किया, so 34,680 का बैलेंस आया. इट विल बी नोन एज द ओपनिंग कैपिटल फंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया, and after that we are moving to the next part of this question, that is the income and expenditure account. So you know very well how we will prepare the income and expenditure account. Receipts and payment account को हम लोग देखते हैं basically, और receipts and payment account का जो डेबिट साइड होता है that is the receipts, so it will be treated as the expenditure, income of the income and expenditure account, and the payment side of the receipts and payment account will be taken as the expenditure of the income and expenditure account. So one by one हम सारी चीजों को include करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है salary. As you can see that salary, the value of the salary is given in the question as 17,000. So we write down the salary, and in the salary you can see that 17,000. This 17,000 by, you know very well, adjustment is already given. The adjustment is salary outstanding, that is a staff salary payable. तो जो भी staff salary payable है opening 1200, उसे हम क्या करेंगे? beginning को क्या करते हैं? minus 1200, you can see that, and end का salary है 1400, उसे plus करेंगे. So the salary is 17,200. The next part is upkeep of field of pavilion. So उसे हम लोग एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं. Upkeep of fields and pavilion. So the value is 3,400. मेडिसिन परचेस्ड, मेडिसिन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. मेडिसिन के लिए कितना अमाउंट गिवन है? That is 4,000. And you know very well, opening medicine, opening stock of the medicine, that is added, and closing stock of the medicine, that is 650, will be deducted. So finally हमें डिडक्ट कितना करना है? 480 and 650 का डिफरेंस, that is 120, 170. तो 170 डिडक्ट हो जाएगा, तो 3,830 ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम. मैच एक्सपेंस को कंसीडर तब करते हैं जब हमारा मैच फंड से वैल्यू ज्यादा हो, और हमारे पास मैच फंड कितना है? 12,000, और मैच एक्सपेंस कितना है हमारा? 8,800. सो बेसिकली हम इसको एडजस्ट करते हैं मैच फंड से फंड का एक्सेस. जैसे मैच फंड है आपका 12,000, उसमें से एक्सपेंस कितना हो गया? मैच एक्सपेंस 8,800.
So value is 3,200. Building construction is not a part of income and expenditure account. Maintenance expense 3,600. Maintenance expense 3,600. Rent and taxes will be a 8,950. Grass seed, it is also known as a revenue expenditure. आपने पवेलियन में ग्रास बिल्ड करने के लिए एक्सपेंस किया, दैट इज अ 500. Cost of second hand car, it is also known as a capital expenditure and it will be shown in the asset side of the balance sheet. कैश बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट का क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर नहीं होगा. अब हम लोग इधर आते हैं एसेट साइड में. एसेट्स में सबसे पहले वैल्यू दी है सब्सक्रिप्शन. सो यू नो वेरी वेल सब्सक्रिप्शन में हम कौन सी वैल्यू इंक्लूड करते हैं. इसमें आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना, रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन. रिसीव्ड हुआ सब्सक्रिप्शन दैट इज 96,000. उसमें आप करोगे क्या, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग एंड को क्या करोगे, प्लस करोगे, और एडवांस बिगनिंग को क्या करोगे, प्लस, और एडवांस एंड को क्या करोगे, माइनस करोगे. और जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सो बेसिकली सब्सक्रिप्शन आपको मिला 96,000 जिसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 800. सो सिर्फ 800 माइनस करेंगे. जनरली बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो ये 1000 सब्सक्रिप्शन माइनस करते हैं. नहीं, 1000 जरूर बाकी था आपका आउटस्टैंडिंग, यानी 1000 बचा था आपका सब्सक्रिप्शन, लेकिन जिसमें से आपको सिर्फ करंट ईयर 800 ही मिला, यानी स्टिल अभी 200 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2012-13. 12-13 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 200. तो आप इतना ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड में एंड की वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ ही साथ 200 एक्स्ट्रा और आएगी जो अभी आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है. तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है आपका, एंड है 2500. एडवांस बिगनिंग में कितना है, बिगनिंग का एडवांस है 600 और एंड का एडवांस है 900. सो आप इसको डिडक्ट कर दोगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्लेस कर दोगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब आप इसको पहले सॉल्व कर दो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 96,000 माइनस 800 प्लस 2,500 प्लस 600 माइनस 900. That is 97,400 is the net income from subscription which are credited to the income and expenditure account. Thereafter, we will move to the next part of this question, that is membership admission fees. कुछ बोल नहीं रहा है, so उसको हम लोग revenue receipts की तरह treat करेंगे. Admission fees. Admission fees will be a 3,500. सेल ऑफ फर्नीचर कंसीडर नहीं करते क्योंकि इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट आपको ये याद रखना है कि आपने जो फर्नीचर सेल किया उस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. सो आप एडजस्टमेंट में देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपने 5,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर सोल्ड कर दिया है. कितने में सोल्ड किया है, इट इज ऑलरेडी गिवन कि आपने उसको सोल्ड किया है 1,600. तो आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. कितने का लॉस हो गया, 5,000 का फर्नीचर आपने 1,600 में सोल्ड कर दिया, तो आपको लॉस कितना हुआ, 3,400 का. उसी तरह से डोनेशन, इट इज अ जनरल डोनेशन. सो डोनेशन को हम लोग किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, दैट इज 5,000. सेल ऑफ ग्रास, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, आपने ग्रास को सोल्ड कर दिया है 200 में. मैच फंड रिसिप्ट ऑलरेडी हमने उसको एडजस्ट कर दिया है. और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. अब आप देखो आपके पास एफडी कितने की थी, शुरू में भी 10,000 की थी, एंड में भी 10,000 की थी. कितना परसेंट उसमें इंटरेस्ट मिला था, 900. सो अगर आप देखो तो आपको मिलना कितना चाहिए था एफडी पे इंटरेस्ट, 900. 10,000 का 9% दैट इज 900. लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ है, 450. सो इट आउट स्टिल एक्रूड इंटरेस्ट, यानी इनकम आपको नहीं मिली है इंटरेस्ट की, दैट इज 450. इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. मुझे लगता है मैंने सारी चीजें लिख ली हैं, लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई है, वो है आपकी, दैट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्नीचर.
सो यू कैन सी दैट टोटल फर्नीचर, शुरू में फर्नीचर कितने का था 20,000, तो फर्नीचर था बिगनिंग में 20,000, जिसमें आपने सोल्ड कर दिया 5,000 का फर्नीचर। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्नीचर इज 15,000। अब इस पे आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में 10% डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्नीचर। सो 15,000 का कितना परसेंट आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे? 10%। सो द वैल्यू इज 1500। सो आपने सारी चीजें क्या कर ली, प्रिपेयर कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें इनपुट कर दी इसमें। अब हम लोग एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग बैलेंस क्रिएट करेंगे। सो द 3,200, 97,400, 3,500, 5,200 एंड 900। तो इधर का टोटल आ रहा है 1,10,200। इधर भी कितना टोटल आना चाहिए? 1,10,200। और जो डिफरेंस आएगा उसको किस नाम से शो करेंगे? सरप्लस। सो सरप्लस कितना आ रहा है? फाइंड आउट। 17,200, 3,400, 3,830, 3,600, 8,950, 500, 3,400 एंड 1,500। तो आपने ये सारी चीजें क्या कर दी, माइनस कर दी, तो आ रहा है 67,820। अब आप फाइंड आउट करो कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। So there was a calculation mistake. So at end we find that the answer is 64,620 of the surplus. So हमने क्रेडिट में टोटल किया, so we find 1,10,200, and when we total the debit side, so we find a surplus that is 64,620 as a surplus. So you can see that how we prepared income and expenditure account and the balance sheet, opening balance sheet of the question number 26. Now we have to prepare the closing balance sheet of the question number 26. Okay, so how we will prepare the balance sheet of question number 26? Question number 26, NPO balance sheet, that is a closing balance sheet. The closing balance sheet will be prepared on 31st March 2014. How it will be prepared? First of all, we write down the closing balance of cash, bank and fixed deposit given in the credit side of the receipts and payment account. So the cash closing balance is 1,500, closing bank value is 6,000 and fixed deposit value is rupees 10,000. Fixed deposit at the rate of 10% interest at the rate of 9%, यानी जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट आपको 450 इंटरेस्ट मिला है, सो दैट्स वाई एक्रूड इंटरेस्ट विल बी टेकन एज द 450। अगर आप इनकम रिसिप्ट इनकम एक्सपेंस अकाउंट देखोगे तो उसमें ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है 2,500 और प्रीवियस ईयर का है 200। हाउ? बिकॉज यू नो वेरी वेल, बिगनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग था 1,000, जिसमें से सिर्फ 200 रुपीज ही, 800 रुपीज ही रिसीव हुआ था करंट ईयर में। लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन के ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग 800 फॉर 2012-13। तो 800 ही मिला, 1,000 में सिर्फ 200 800 ही मिला, अभी भी 200 नहीं मिला। So outstanding subscription at end 2,700, out of them 2,500 from the previous year, current year, and 200 from the previous year, as well as advance subscription current year. Current year का advance subscription है that is 900, and closing stock of medicine, medicine का closing stock है आपका 650, and salary, outstanding salary of staff at the end is 1,400। और आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आया था, उसके साथ साथ हम लोग मैच फंड भी दिखा देते हैं पहले कैपिटल फंड से। मैच फंड आपके पास था 10,000 रुपीज का, 12,000 रुपीज का, जिसमें आपने एक्सपेंस कर दिया था, एक्सपेंस ऑन मैच
expense which are related to the matches, that is 8,800, so 3,200 remain regarding the match fund, because it is a specific fund, so it will be shown in the liability side of the balance sheet. Building constructed, आपने building construct कराया है, so it is a capital expenditure. Building constructed amount will be 30,000. And also you are purchase the second hand car. आपने सेकेंड हैंड कार भी परचेस किया है, कितने का परचेस किया है? 40,000 रुपीज का, तो उसको भी हम शो करेंगे. आपके पास फर्नीचर जो था शुरू में था 20,000 रुपीज का, जिसमें से आपने 5,000 का फर्नीचर सेल कर दिया और 1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. सो आपके पास इस समय 13,500 रुपीज का क्या बचा हुआ है? फर्नीचर रिमेन है. अगर हम बात करें क्लोजिंग बैलेंसेस की, सो आपके पास कैपिटल फंड था शुरू में, जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से प्रिपेयर किया था. सो द कैपिटल फंड एट बिगनिंग, दैट इज 64,620, जिसमें आपने सरप्लस ऐड करना है. सरप्लस व्हाट रुपीज? सरप्लस इज, opening capital fund is 34,680 and surplus is 64,620. So 001,319, 99,300 as a closing capital fund. क्या अभी भी कोई वैल्यू बच गई है? देख लो ध्यान से. और आफ्टर द showing all the items in the balance sheet, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे सारी चीजें. So after write down all the items from the receipts and payment account, income and expenditure account, as well as from the given adjustment. उसके बाद हम लोगों ने क्या find out किया? The total of the balance sheet, and we find out that both side of the total of the balance sheet is equal. The total of the balance sheet, closing balance sheet, is 1,04,800. So ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या बनाया? We have to prepare the opening balance sheet, उससे ओपनिंग कैपिटल फंड पता चला. उसके बाद हम लोगों ने प्रिपेयर किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे हमें क्या पता चला? सरप्लस, दैट इज 64,620, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर दी क्लोजिंग बैलेंस शीट. और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोगों ने फाइंड आउट किया द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 1,04,800, 1,04,800, एंड बोथ साइड आर इक्वल. ओके, so now we will move to the next question, which are related to the share. So let's we take the one question from share, and the question are practical question है which are related to the shares, and the question are as follows. KS invited application for issuing 1,60,000 equity share of 10 each at a premium of 6 per share. यानी कंपनी ने शेयर इशू किया 1,60,000 शेयर, इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने का है? दैट इज 10 रुपीज का, जिसपे 6 रुपीज प्रीमियम भी इंक्लूड है. यानी टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 16, बिकॉज दिस शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 6. ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर, एप्लीकेशन पे है 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे है आपका 6 रुपीज, एंड कॉल्स पे है बैलेंस. सो बैलेंस कितना बचेगा? 6. 6 4 10 एंड 6. इस एप्लीकेशन में 1 रुपए प्रीमियम का है, सो यू नो वेरी वेल. बाकी 3 रुपीज किसके होंगे? शेयर के. उसी तरह से अलॉटमेंट पे 3 रुपीज प्रीमियम का है और 3 रुपए किसके बचेंगे? शेयर के. सो यू कैन सी दैट टोटल प्रीमियम इज 6, जबकि प्रीमियम कितने हो गए? 3 + 1 4, 2 प्रीमियम बच गए और 4 रुपीज शेयर के. तो अगर आप काउंट करो तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 4 to 6. उसी तरह से शेयर की वैल्यू कितनी है? 4 3 7 3 10. तो 10 रुपीज शेयर का हो गया और 6 रुपीज प्रीमियम का. उसके बाद क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 शेयर वे रिसीव्ड. हमें 3,20,000 रुपए के लिए एप्लीकेशन मिला. एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वे रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वे रिफंडेड. शेयर वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस ऑन द टू द रिमेनिंग अलॉटमेंट. यानी उसके बाद क्या किया गया? हमें 3,20,000 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिला, जबकि हमारे पास शेयर कितने अवेलेबल हैं?
1,60,000, जिसमें से 80,000 शेयर वालों को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। एंड जो बाकी शेयर्स है, जो बाकी कितने बचे, 80 में से 320 में से 80 डिडक्ट कर दो तो आ जाएगा 2,40,000, उनको हमने कितना दिया, 1,60,000। यानी अगर हम एक्सेस निकालो तो यहाँ पर एक्सेस आएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 3,20,000 रुपीज आपको रिटर्न कर देना। ओके, और 2,40,000 अप्लाइड हुआ था जिसमें आपने 160 ही शेयर दिया था, तो यहाँ पे भी 80,000 रिमेन है 4 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 3,20,000 आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि यू नो वेरी वेल प्रोराटा अलॉटमेंट पे जो भी पैसा एक्सेस होता है उसे हम किस पे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू विद ऑन अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट पे उस पैसे को एडजस्ट कर देना है 3,20,000 इसको। सो इस 3,20,000 को हम किस पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन पे आगे इंफॉर्मेशन गिवन है इज दैट जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी जैन के पास 800 शेयर था, कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे, और जैन ने उस शेयर को कौन सा पैसा नहीं दिया, एरियर कर दिया अलॉटमेंट का पैसा, और उसके शेयर को हमने क्या कर दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। उसी तरह से सेकंड पर्सन था जिसका नाम था, जैन के पास फाइनल कॉल जब हमने कॉल्ड अप किया, दैट इज गुप्ता, तो गुप्ता के पास टोटल कितने शेयर थे, गुप्ता के पास टोटल शेयर थे हमारे 1200 शेयर, और ये अप्लाइड शेयर है, जबकि जैन का लिखा है होल्डिंग 800 शेयर, तो जैन का अलॉटेड शेयर दिया है और गुप्ता का अप्लाइड शेयर दिया है, दैट इज 1200, अप्लाइड शेयर है 1200, तो इसका आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। उसने क्या फेल कर दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं दिया, तो ये अलॉटमेंट का एरियर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर फाइनल कॉल का एरियर हो गया। फाइनल कॉल क्या, कॉल्स कह लो, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक ही में कंबाइन किया गया है इस क्वेश्चन में। These शेयर वेर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसमें से शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में उसमें से 1,000 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया। द रीइश्यूड शेयर वेर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ जैन, यानी हमने टोटल 1,000 शेयर इशू किए, जिसमें से पूरे के पूरे शेयर जैन के 800 शेयर इशू हुए और गुप्ता के सिर्फ 200 शेयर इशूड हुए हैं। ओके, सो कुछ स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है, हम लोग उसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि पहली एंट्री आपकी तो पहली क्लियर है कि आपको एप्लीकेशन मिला, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो द फर्स्ट एंट्री which are related to the bank account debit to share application, value is 1,60,000 multiplied by, is that correct, no it is wrong, 3,20,000 के लिए मिला है आपको एप्लीकेशन for 4 rupees, so total value will be a 4 2s are 8, that is 12,80,000, आपको एप्लीकेशन मिला 12,80,000, बट एक्चुअल की अगर हम बात करें, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें, सो वहां पर अगर हम लोग डिस्कशन करें, सो वी फाइंड दैट एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया 12,80,000, बट एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, 160 मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल शेयर मल्टीप्लाई बाय द शेयर वैल्यू, दैट इज 3, तो 4,80,000 credited in the share capital, remaining value will be taken as a security premium, that is 1 rupees, 1 रुपए प्रीमियम का था ना, 1,60,000 into 1, that is 1,60,000, yes sir it is correct, and thereafter you know very well आपने एक्सेस पैसा किस पे एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है, 3,20,000, एंड कितना पैसा आपने रिटर्न कर दिया, that is टू बैंक 3,20,000, अब आप ऐड कर लो ऑटोमेटिक आंसर 12,80,000, 12,80,000 में 6,40,000 आपके एक्चुअल एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड है, और 6,40,000 में 3,20,000 आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया और बाकी पैसा आपने रिटर्न कर दिया। देयर आफ्टर आप क्या करोगे, कॉल्ड अप करोगे, कौन सी वैल्यू, यू विल कॉल्ड अप अलॉटमेंट मनी, दैट इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर पे कॉल्ड अप करोगे, यस सर ओनली 1,60,000, 1,60,000
multiplied by 6. Is that correct? No. 1,66,000 में 3 रुपीज शेयर के हैं और 3 रुपीज किसके हैं? प्रीमियम के. So 16 3s are 48. 4,80,000 share, 4,80,000 from the. So total 9,60,000 आपके किस पे एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे. यानी 4,80,000 शेयर का है, 4,80,000 प्रीमियम का है. बाय बिकॉज 3 रुपए शेयर के हैं, 3 रुपए प्रीमियम के. टोटल 6 रुपीज हैं. नंबर 4, व्हेन यू रिसीव द अलॉटमेंट मनी. सो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आपको अलॉटमेंट मिलने वाला था 9,60,000, उसमें से ऑलरेडी आपको पहले से मिल चुका है 3,20,000. सो आपको मिलना चाहिए था, द अमाउंट इज 6,40,000. सिर्फ आपको मिलना चाहिए था 6,40,000. अब उसमें भी एरियर हो गया. उसमें भी एक पर्सन है जिनका नाम है जैन, जिनको 800 शेयर था, उन्होंने क्या कर दिया? एरियर कर दिया. तो आपको यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ द प्रोराटा अलॉटमेंट, जब भी कोई एरियर हो और ऐसी जगह एरियर हो जहां आपने अपने पैसा एडजस्ट किया, जैसे अलॉटमेंट पे आपने पैसा एडजस्ट किया, कितना? 3,20,000. सो उस केस में आपको पता करना पड़ेगा कि जैन का कितना एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट. सो लेट्स वी फाइंड आउट हाउ मच मनी adjusted of Jan which are already paid on application. यानी उसने ऑलरेडी दे दिया है अलॉटमेंट पे. जैन का हम पहले क्या निकालेंगे? अप्लाइड शेयर. अप्लाइड शेयर निकालेंगे. अप्लाइड शेयर कैसे निकलता है? यू नो वेरी. अप्लाइड कितना था इस कैटेगरी में? अगर आप देखो तो अप्लाइड था 2,40,000 और अलॉटेड कितना था? 160. इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, चाहे जैन हो चाहे गुप्ता हो, बोथ आर द रिलेटेड टू द दिस ग्रुप. बिकॉज अगर वो नेल ग्रुप में होते तो उनको शेयर मिलता ही नहीं. तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? इस वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं. तो उनका अप्लाइड कैसे निकलेगा? जैन का हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा, गुप्ता का हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा. तो जैन 2,40,000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 800. सो ये आपका आएगा टू 1,200 शेयर. यानी कि जैन ने अप्लाइड कितना किया था? 1,200 शेयर. तो उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? जैन ने एप्लीकेशन मनी दी होगी 1,200 मल्टीप्लाइड बाई 4,800 उसने पे किया होगा. जबकि उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी? एक्चुअल मनी बनेगी कितनी? हाउ मच? दैट इज 800 इंटू यस 3,200. सो उसका एक्सेस कितना हो जाएगा? 1,600. अब इस 1,600 में हम अलॉटमेंट कितना ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 800 इंटू 6, 4,800 उससे ड्यू करेंगे. यानी 1,600 उसका ऑलरेडी क्या है? एक्सेस है. किस पे? एक्स एप्लीकेशन पे. 1,600 ऑलरेडी उसने मुझे दे दिया है. 4,800 मैंने डिमांड किया, तो कितना उसका एरियर ट्रीट किया जाएगा? ये मैंने आपको पहले ही समझाया है पूरे स्टेप्स. दैट इज 3,200. सो यू कैन सी दैट कि यहां पर जब हमने जैन का वर्किंग निकाला, सो वी फाइंड दैट कि जैन को सिर्फ और सिर्फ 3,200 ही एरियर माना जाए, क्योंकि उसका ऑलरेडी अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट है? 600 ऑलरेडी उसका एडजस्टेड है. इट मींस जैन का एरियर होगा ऑन अलॉटमेंट, जिसे हम कॉल्सन एरियर की तरह ट्रीट करेंगे, दैट इज 3,200. सो 6,40,000 में 3,200 एरियर हो गया, तो कितना पैसा रिसीव हुआ? 6,36,800. Okay, the received amount on allotment, that is 6,36,800 received by the company on allotment. Because allotment में दो काम था. पहला तो पहले से उसने पैसा एडजस्ट किया था 3,20,000 रुपीज. सो 9,60,000 में से 3,20,000 ऑलरेडी पहले से मिल चुका है. और ऑलरेडी जैन ने भी उस पर क्या कर दिया? एरियर कर दिया. जैन ने कितना एरियर किया है? दैट इज 3,200. तो एरियर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो 6,40,000 में एरियर हो गया 3,200. तो बाकी कितना वैल्यू मिला होगा हमें? 6,40,000 में 3,200 डिडक्ट कर दो तो आ जाएगा 6,36,800. एंड आफ्टर दैट हमने उसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया. ओके, सो आज के वीडियोस में हम लोग सो हम लोग क्या करते हैं? उसके फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं. फॉरफीचर इमीडिएटली फॉरफीट कर लिया हमने उसके शेयर को. फॉरफीट कैसे किया? तो उसकी एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूं.
एंट्री नंबर 5th, यू नो वेरी वेल, इसमें तो हर जगह प्रीमियम हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल्स हो, इसमें हर जगह क्या है, प्रीमियम है। तो नंबर 5th एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो उसमें प्रीमियम नॉट रिसीव की तरह ट्रीट किया जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी ट्रीट की जाएगी, कैपिटल की वैल्यू ट्रीट की जाएगी, कितना कैपिटल की वैल्यू रिसीव हुई। सो हाउ मच अमाउंट कॉल्ड अप बाय द एज अ कैपिटल, तो उसका शेयर कितना था 800, उसमें हमने कितना रुपए शेयर की वैल्यू है 10, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू हो गई 8000। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम की वैल्यू कौन सी नहीं मिली सर, एप्लीकेशन की उसने पूरी दे दी है, प्रीमियम की नहीं दी। प्रीमियम की वो भी कौन सी वैल्यू नहीं दी है, तो आप कैलकुलेट कर लो, प्रीमियम कितने से था अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज से, तो आप डायरेक्टली 3 रुपीज मान लो या बैलेंस वैल्यू मान लो, क्योंकि उसने ऑलरेडी 1600 रुपए दिया हुआ था। अलॉटमेंट पे उसने कितना दिया था, 1600 रुपए, जबकि हम उससे मांगते कितना, 2400 रुपए। ध्यान से समझना, प्रीमियम अगर हमें निकालना है नॉट रिसीव्ड की प्रीमियम की वैल्यू इतनी नहीं मिली, तो थोड़ा सा लॉजिकली यूज करना पड़ेगा। हम उससे प्रीमियम का कितना मांगते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो उसने पूरा दे दिया था, अलॉटमेंट पे कितना मांगते हैं उससे 2400, जबकि उसका एक्सेस कितना पड़ा हुआ है मेरे पास 1600, तो उसने प्रीमियम पे कितना पैसा नहीं दिया होगा 800, तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी नहीं मिली होगी 800। एरियर कितना आया है, दैट इज 3200। फॉर फ्यूचर कितना आएगा, काउंट कर लो, 8800 माइनस 3200, दैट इज 006 एंड 5600। तो उसने कितना हमें पे किया है वैल्यू 5600। एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक ये भी हुई है कि 800 इंटू 10 नहीं होगा, क्योंकि हमने उसने कॉल्डअप कितना किया है, खाली आप यहाँ काउंट कर लो, 3 रुपीज शेयर का, 3 रुपीज शेयर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद तो हम फॉरफीट ही कर ले रहे हैं, यानी 4800। सो हमने उससे टोटल कॉल्डअप हुआ 5600 माइनस 3200, उसका एरियर हो गया 5600, उससे मैंने कॉल्ड अप किया और 3200 उससे रिसीव नहीं हुआ, सो दिस इज अ 2400 रिसीव्ड थ्रू एन अलॉटमेंट। ओके, सो दिस इज अ एंट्री ऑफ, सो यू कैन सी दैट हमने शेयर पे उससे कितना मांगा 4800, कितना 800 पे 6 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होता है, जितना प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिलता है, दैट इज 800, और उसके बाद शेयर फॉर फीचर, जितना फॉर फीचर का पैसा मिला है, इसको हमने बैलेंस तरीके से निकाला, एरियर ऑलरेडी गिवन दैट इज 2200। आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है कि हमें प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम अकाउंट उतने ही से डेबिट होता है जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता। So you can see that 800 अलॉटमेंट में देखो 800 शेयर पे उसने प्रीमियम कितना मांगा 2400, उसने ऑलरेडी एक्सेस कितना किया 600, तो ये मैं मान लेता हूं कि उसका जो एक्सेस का पैसा है वो प्रीमियम पे एडजस्ट कर दिया गया, दैट इज, तो उसका कितना पैसा बाकी है अभी 800, तो 800 विल बी ट्रीटेड एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, so in this video you can see that we pass the entries up to the allotment and the forfeiture of the share of Jan. So in the next video, we will move to the next part of this question, that is entries related to the Gupta and entries related to the forfeiture of the share of the Gupta, and at last यानी next video में हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।